Hello students, today I'm here with a new video of business studies on the topic directing. After completion of this session, you will be able to describe the concept of directing, the importance of directing and various elements of directing. So let's start with our topic directing. As you can see in the picture that a person is sitting on the chair and giving instructions and orders to the others. So that type of person, that type of activity in which orders and instructions are given to others, that is known as directing. In the ordinary sense, directing means giving instructions and guiding people in doing the work. But in management, directing refers to the process of instructing, guiding, counseling, motivating, and leading the people in the organization to achieve its objectives. तो डायरेक्टिंग का मतलब है लोगों को इंस्ट्रक्शंस देना, गाइडेंस प्रोवाइड करनी, उनको काउंसलिंग करना, उनको मोटिवेट करना और लीड इस तरीके से करना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अपने बेस्ट एफर्ट्स लगा सकें. डायरेक्टिंग इज़ द की मैनेजरियल फंक्शन which is performed by every manager and takes place throughout the life of an organization. Then we have characteristics of directing. The first characteristic is directing initiates action. What is it? Directing is a key managerial function. While the other functions prepare a setting for action, directing initiates action in the organization. So it is a function which brings the people into action. There are other functions of management also, like we have done in chapter number 1. We have planning, organizing, staffing, and the fourth function is directing. And it is the very important function because it is the function which brings the people into action. Second point here is directing takes place at every level of management. So directing is required at all the levels of management. It is required from top executive to supervisor who performs the function of directing. So directing takes place wherever superior subordinate relations exist. So it is a all-pervasive function. It is required by all the people working at various levels of management. Next is directing is a continuous process. Directing is always a continuous activity. It takes place throughout the life of an organization, irrespective of the people occupying various managerial positions. When a manager has given orders and instructions to his subordinates, जब मैनेजर ने अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन दे दिए तो उसके बाद भी वो रेस्ट नहीं करता, वो बैठता नहीं है, रादर वो घूम घूम के अपने सबॉर्डिनेट्स के वर्क को वॉच ओवर करता रहता है और उनको टाइम टू टाइम गाइड करता रहता है, मोटिवेट करता रहता है ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को पूरा करने के लिए अपने बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सके. तो डायरेक्टिंग ऐसा फंक्शन नहीं है जो एक बार किया जाए. डायरेक्टिंग हमेशा लाइफ लॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन में चलती रहती है. नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. जो डायरेक्शंस हैं इट मीन्स गाइडिंग, प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग द पीपल. और ये सारे काम कौन करता है? ये सारे काम तो टॉप लेवल ही करता है. तो इट इज़ ऑलवेज इनिशिएटेड फर्स्टली एट टॉप लेवल एंड देन ग्रेजुअली इट मूव्स टू दी लोअर लेवल. तो डायरेक्टिंग हमेशा टॉप से शुरू होती है और हमेशा नीचे की तरफ ही जाती है. टॉप लेवल वाले मिडल लेवल वालों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, मिडल लेवल वाले लोअर लेवल वालों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और लोअर लेवल में भी जो सुपरवाइजर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, वो वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं.
So that way directing always flows from top to bottom. Now we will do importance of directing. The first point here is directing helps to initiate action. तो डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ब्रिंग द पीपल इनटू एक्शन. डायरेक्टिंग लोगों को एक्शन में, काम पे लगा देता है. ये लोगों को एक्शन में लेके आता है सो दैट दे पुट देयर बेस्ट एफर्ट फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सुपरवाइज़र है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ही ऑलवेज गाइड्स हिज सबऑर्डिनेट्स, उनके डाउट्स भी क्लियर करता है और वर्कर्स की हर तरीके से हेल्प करता है ताकि वो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सके. नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स. इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है कंबाइन करना. तो डायरेक्टिंग भी क्या करता है, इट इंटीग्रेट्स द एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स इन सच अ वे दैट एवरी इंडिविजुअल एफर्ट कंट्रीब्यूट्स टू ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. हर इंडिविजुअल के एफर्ट को लगाकर और सभी एम्प्लॉयज़ इकट्ठे होकर ही ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं. सो इट इंश्योर्स दैट ऑल द इंडिविजुअल्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे वर्क टुगेदर फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. फॉर एग्जाम्पल, a manager with good leadership abilities will be in a position to convince the employees working under him. एक ऐसा मैनेजर जिसमें बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, वो अपने अंडर जितने भी एम्प्लॉयज़ आते हैं उन सबको कन्विंस कर पाएगा एंड ही कैन बिकम अ टीम लीडर एंड द टीम एफर्ट्स विल लीड टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. द थर्ड पॉइंट इज डायरेक्टिंग हेल्प्स एम्प्लॉयज़ टू रियलाइज देयर कैपेबिलिटीज़. डायरेक्टिंग ही ऐसा फंक्शन है जो एम्प्लॉयज़ को अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी एबिलिटीज़, अपने हिडन टैलेंट्स, उनके बारे में समझाता है. तो डायरेक्टिंग इट हेल्प्स द एम्प्लॉयज़ टू फुली रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज़ बाय मोटिवेटिंग एंड प्रोवाइडिंग देम इफेक्टिव लीडरशिप. A good leader can always identify the position of his employees and motivate them to extract work up to their full potential. तो एक अच्छा लीडर वही है जो सभी एम्प्लॉयज़ की पोटेंशियलिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को पहचान लेता है और उन सब को मोटिवेट करता है ताकि वो अपनी सारी पोटेंशियलिटीज़ का सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर सके. Next is directing facilitates introduction of needed changes in the organization. Effective directing through motivation, communication and leadership. Effective directing के लिए तीनों ही बहुत ज़रूरी हैं. Motivation, communication and leadership. It helps to reduce such resistance and develop required cooperation in introducing new changes in the organization. अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ मेजर चेंजेस लेके आने हैं अपने वर्क स्टाइल में या अपने अकाउंटिंग प्रोसीजर में या मशीनरी की यूजेज में, तो उन चेंजेस को लाने के लिए जब भी हम एम्प्लॉयज़ को कहते हैं तो जनरली दी एम्प्लॉयज़ रेजिस्ट, क्योंकि लोअर लेवल वाले वर्कर्स बहुत जल्दी रेजिस्ट करते हैं. तो डायरेक्टिंग का क्या वहाँ पर पर्पज़ होगा? डायरेक्टिंग का पर्पज़ होगा कि उन चेंजेस को लाने से पहले ही उन सभी वर्कर्स का, उन सभी सबऑर्डिनेट्स का एक माइंड सेटअप ऐसा तैयार करना है सो दैट दे देमसेल्व्स फील कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी नए चेंजेस हो रही हैं, दे ऑल आर फॉर आवर बेटरमेंट. तो डायरेक्टिंग के थ्रू हम कोई भी नए चेंजेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एंड एम्प्लॉयज़ विल हैप्पीली एक्सेप्ट दोज चेंजेस. Fifth point, it brings stability and balance in the organization. Effective directing helps to bring stability and balance in the organization. And it fosters cooperation and commitment among the people and helps to achieve balance between various groups, activities and their departments. एक अच्छी डायरेक्टिंग में ये भी खूबी होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, वहाँ बैलेंस बना के रखती है
और अगर सबॉर्डिनेट्स के बीच में कोई ईगो क्लैशेस हो जाएं या किसी तरह का लड़ाई झगड़ा हो जाए, उन सब को रोकने के लिए, उन सबको कैसे सॉर्ट आउट करना, उसके लिए भी काम करती है। तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टिंग इस तरीके से की जाती है कि सारे एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड रहते हैं, उनको काम करने के लिए मोटिवेट किया जाता है ताकि वो अपने बेस्ट एफर्ट्स लगा सकें ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को अचीव करने के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। So basically there are 4 elements of directing. The first one is supervision, second one is motivation, third one is leadership, and the fourth is communication. All these are the elements of directing. Now we will do the first element of directing, that is supervision. You can see here in this picture that the superior is watching, observing very carefully to his subordinate. So that's the task of supervision. Supervision means overseeing what is being done by subordinates. Subordinates को बहुत ही ध्यान से देखना कि वो क्या कर रहे हैं. And giving instructions to ensure optimum utilization of resources. और उनको इस तरीके से इंस्ट्रक्शन देना ताकि सभी सबऑर्डिनेट्स ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को अचीव करने के लिए सभी रिसोर्सेज को मैक्सिमम एक्सटेंट तक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें या मैक्सिमम एक्सटेंट तक यूटिलाइज कर पाएँ. द फंक्शंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ सुपरवाइज़र आर वेरी वाइटल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. सुपरवाइज़र के फंक्शंस और उसकी परफॉर्मेंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ही इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द वर्कर्स. सुपरवाइज़र ये एक ऐसा पर्सन है जिसका वर्कर्स के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन है, इसीलिए हम उसको लिंक बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट भी कहते हैं. वेयर एज अदर मैनेजर्स हैव नो डायरेक्ट टच विद द लोअर लेवल वर्कर्स. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सुपरवाइज़र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वो टाइम टू टाइम वर्कर्स के साथ कांटेक्ट बना के रखता है. ही एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. वर्कर्स में भी ग्रुप यूनिटी, टीम स्पिरिट की फीलिंग लेके आता है और सभी अपने सबऑर्डिनेट्स के मोरल को बूस्टअप करता है.